Hello friends, today we'll start with chapter 10 CA Inter Company Audit. Now let us start this chapter without wasting any more time. We'll skip introduction. Okay. Number 1, eligibility, qualification and disqualification of auditors. So eligibility, qualification, disqualification of auditors are governed by section 141 of Companies Act 2013. So now let us start reading. Okay. Provisions relating to eligibility, qualification, and disqualification of an auditor are governed by Section 141 of Companies Act 2013. The main provisions are stated below. Okay. Number one, a person shall be eligible for appointment as an auditor of company if he is a chartered accountant. It may be noted that a firm with a majority of partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name to be auditor of the company. मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि पर्सन जो भी चार्टर्ड अगर कोई पर्सन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो ऑडिटर एज ए ऑडिटर ऑफ कंपनी अपॉइंट किया जा सकता है और इन अदर वर्ड्स अगर कोई फर्म है पार्टनरशिप फर्म जिसमें मेजोरिटी पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट मेजोरिटी पर्सन और पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट and are practicing in India. In that case, we can also appoint that partnership firm as auditor of the company. Okay. When a firm including limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. मतलब अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है और वो कंपनी की ऑडिटर अपॉइंट की गई है इन दैट केस पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिसिंग है ही कैन ओनली ही कैन एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म मतलब वही साइन कर सकता है और वही एक्ट कर सकता है फर्म के बिहाफ पे अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141 along with rule 10 of companies rules 2014 following person shall not be eligible to be appointment as an auditor of the company, namely a body corporate other than limited liability partnership under लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनी कोई कंपनी को अपॉइंट नहीं कर सकते अपने एज ए ऑडिटर बट वी कैन अपॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ओके ऑफिसर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय को अपने एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते पर्सन हु इज a partner or who is in the employment of person who is a partner or who is in the employment of an officer or an employee of the company मतलब कंपनी के ही कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है पार्ट और पार्टनर है कोई पर्सन उसको भी हम ऑडिटर एज ऑडिटर ऑफ कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकते पर्सन हु or his relative or partner is holding any security or interest in the company or its subsidiary or its holding or associate or subsidiary of such holding company. It may be noted that relative may hold security or interest in company of face value not exceeding rupees 1 lakh. It may be noted that condition of 1 lakh shall wherever relevant be applicable in case of company not having share capital or security. ओके ये क्या बोल रहे हैं कि पर्सन हु और हिज रिलेटिव मतलब पर्सन जो खुद उसका रिलेटिव और उसका पार्टनर अगर कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी जो ये कंपनी की होल्डिंग कंपनी है उसमें सिक्योरिटीज और क्या कोई भी इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है उसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीस से ज्यादा हो तो ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर अगर उसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीस से कम हो तो ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी ओके ये क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट में ऑल्सो नोट दैट in the event of acquiring any security or interest by relative above above the threshold prescribed
The corrective actions to maintain the limit, as may be specified, shall be taken by auditor within 60 days of the. अगर कोई रिलेटिव एक्वायर कर रहे हैं 1 लाख से ऊपर के शेयर्स और सिक्योरिटी, तो इन दैट केस ऑडिटर को करेक्टिव एक्शंस लेने हैं विदिन 60 डेज ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट. ठीक है. The following point merit consideration in this regards. A. Value of share of rupees 1 lakh that can be held by relative is the face value and not market value. मतलब ये कहना चाहते हैं कि 1 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं रिलेटिव, लेकिन वो भी 1 लाख फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 1 लाख फेस वैल्यू या उससे कम के शेयर्स रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं. और द लिमिट ऑफ रुपीज 1 lakh would be applicable where securities are held by relative of an auditor and not where securities are held by auditor himself or his partner. In case if auditor or his partner securities of even small वैल्यू शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी या शेयर्स रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं, ऑडिटर खुद और उनके और उसका पार्टनर नहीं कर सकते. अगर ऑडिटर या फिर उसके पार्टनर ने अगर 100 रुपीज की फेस वैल्यू की भी सिक्योरिटीज या शेयर्स होल्ड किए हुए कंपनी के, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. Grace period of 60 days for corrective action shall apply only in respect of securities held by relative. This would not apply to auditor or his partner. मतलब वही वही कहना चाह रहे हैं जो ऊपर कि 60 डेज के ग्रेस पीरियड ऑडिटर और पार्टनर खुद होल्ड कर रहे होंगे तो उनके लिए करेक्टिव एक्शंस नहीं होंगे, लेकिन रिलेटिव होल्ड कर रहा है तो 60 डेज का ग्रेस पीरियड उसके लिए है. The term relative as defined under Companies Act 2013 means anyone who is related to another as a member of Hindu undivided family. HUF के थ्रू अगर रिलेटेड है तो वो रिलेटिव है. हस्बैंड है, वाइफ है, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर. मतलब ये सब रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं. HUF के मेंबर है हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर. ठीक है. अभी ये एग्जांपल्स है. Mr. A, practicing chartered accountant, is holding security of XYZ Limited having face value of 900 rupees. Whether A is qualified for appointment as an auditor of XYZ Limited. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ऑडिटर खुद अगर कोई भी छोटी सी वैल्यू के भी शेयर्स होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और रिलेटिव के लिए 1 लाख फेस वैल्यू तक की लिमिट है, और ऑडिटर और उसके पार्टनर के लिए कोई लिमिट नहीं है. वो कितने भी अमाउंट के शेयर होल्ड करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ओके, वैसे ही एग्जांपल 2 है, 3 है, ये आप देख लेना और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना. ओके. 2. Is indebted to company or its subsidiary or its holding or associate or subsidiary of such holding in excess of 5 लाख. अगर कंपनी को उनसे पैसे लेने हैं, कोई भी पर्सन है, कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग या फिर उसकी सब्सिडरी या फिर उसकी एसोसिएट या फिर कोई ऐसी कंपनी जो ये कंपनी की होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी है, वो उसमें 5 लाख रुपए की उधारी है ये ऑडिटर की या फिर उसके पार्टनर की, तो ये लोग उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे. और हैज गिवन गारंटी or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to company or its subsidiary. सेम वही है. अगर हमने गारंटी दी हुई है कि भाई आपको पैसे नहीं देगा तो मैं आपको दे दूंगा, वैसा करके गारंटी दी हुई है किसी थर्ड पार्टी की ओर से, और उसकी वेल इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो. अ पर्सन E. A person or a firm who, whether directly or indirectly, has business relationship with the company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary company of such holding company or associate company for such nature as may be prescribed. ठीक है. अगर किसी पर्सन और कंपनी फर्म का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, तो वो
भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन इसके अंदर नीचे लिखा है स्टूडेंट्स में नोट दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई, मतलब ये क्लॉज ई के लिए द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू फॉर ए कॉमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की है फॉर कॉमर्शियल पर्पस, लेकिन ये दो नीचे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 1 and 2। ठीक है, commercial transactions which are in nature of professional service permitted to be rendered by auditor or audit firm under Act and Chartered Account under the Act and the Chartered Accountants Act 1949 and the rules or the regulations made those under acts। ठीक है, मतलब कोई भी commercial transactions in the nature of professional service which are permitted to be rendered, मतलब कंपनीज एक्ट भी परमिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी परमिट करता है कि एज ए प्रोफेशनल यू कैन रेंडर सच सर्विस टू कंपनी, इन दैट केस वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं गिना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई। ठीक है, नीचे है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस वेयर which are in the ordinary course of business of the company at arm's length price, like sale of product or service to auditor as a customer in ordinary course of business by company engaged in the business of telecommunication, airlines, hospital, hotel and such other similar businesses। मतलब अगर कंपनी का बिजनेस है वो कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर उसने ऑडिटर को कभी ना कभी एयरलाइन की टिकट बेची होगी तो वो भी एक बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा और ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब ये भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्लॉज ई के पर्पज से। A person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key managerial person। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है कि जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है कंपनी में और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज ए डायरेक्टर और कंपनी का एम्प्लॉय है एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन है, तो वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। A person who is in full time employment elsewhere, अगर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है और a person or a partner of firm holding appointment as its auditor if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor, मतलब कोई भी पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म अपॉइंटमेंट, मतलब वो लोग अपॉइंटमेंट की डेट को या फिर रीअपॉइंटमेंट की डेट को अगर कोई भी 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी के एज ऑडिटर अपॉइंटेड है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। अदर देन इसमें भी एक्सेप्शंस दिया हुआ है, अदर देन वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़ रुपीस, मतलब कि 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिटर एज अपॉइंटेड है तो वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि वो 20 कंपनी काउंट करने में वन पर्सन कंपनी को काउंट नहीं करना है, डोरमेंट कंपनी को काउंट नहीं करना है, स्मॉल कंपनी को काउंट नहीं करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़, ये इन लोगों को काउंट नहीं करना है वो 20 कंपनीज में। ठीक है, अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट of an offence involving fraud and a period of 10 years has not lapsed from the date of such conviction, मतलब अगर किसी को कोर्ट में प्रूव हो गया है कोई पर्सन कि भाई ये बंदे ने फ्रॉड किया था तो वो पर्सन भी एलिजिबल नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर वो फ्रॉड को कन्विक्ट हुए हुए 10 साल लैप्स नहीं हुए हैं तो। A person who is directly or indirectly rendered any service referred to Section 144 of company or its holding company or its subsidiary company। It may be noted that for the purpose of this clause, the term directly or indirectly shall have same meaning as assigned to its explanation। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 144 में जो स्पेसिफाई की गई हुई सर्विसेज है वो कंपनी को या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी को या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इन केस ऑफ एन ऑडिटर बीइंग इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है तो either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever in which such individual has significant influence or control or whose name, trademark or brand is used by such individual shall be termed as rendering
service directly or indirectly by the auditor. मतलब कुछ भी इंडिविजुअल खुद उसके रिलेटिव के थ्रू, उसकी कोई कंपनी के थ्रू, कोई कंपनी वो कंट्रोल कर रहा है उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही प्रोवाइड कर रहा है ऐसा गिना जाएगा. इन केस ऑफ फर्म, either itself or through any of its partner or through its parent subsidiary or associate entity through any or through any other entity whatsoever in which firm or any partner of the firm has significant influence or control or whose name or trademark or brand is used by firm or any of its partners shall be termed as re-rendering of service directly or indirectly by auditor. ठीक है, मतलब वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म खुद या अपने पार्टनर के थ्रू या फिर अपनी कोई कंपनी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी इसमें सेम गिना जाएगा कि भाई वो कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. मतलब ये सेक्शन 144 में वो सर्विस है जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है. सेक्शन 144 में ऑडिटर कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते. चलिए ये देख लेते हैं अपने सेक्शन 144. Section 144 of Companies Act 2013 prescribes certain services not to be rendered by auditor. An auditor appointed under this act shall provide to company only such other services as may be approved by board of director or audit committee. मतलब एडिट वही सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है या फिर ऑडिट कमेटी ने अप्रूव किया है, एज द केस में बी, बट विच शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. लेकिन उसके अंदर भी ये सेक्शन 144 में जो सर्विसेज दी गई है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. वेदर सच सर्विसेज आर रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी, नेमली अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कंपनी, बुक कीपिंग सर्विस. ऑडिटर खुद अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते. डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, rendering of outsourced financial services, management services, and other kind of services as may be prescribed. Actuarial service के लिए कुछ लिखा गया है. Broadly pertains to service relating to evaluation of, okay मतलब उसका definition है, evaluation of financial impact of risk under range of mathematical and statistical methods. It may be noted that auditor or audit firm who or which has been performing any non-audit service or before the commencement of act shall comply with the provision. मतलब ये एक्ट जब इम्प्लीमेंट हुआ तब की बात है कि अगर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कंप्लाई कर देना है बिफोर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट. ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया गया है. सीए पोशिन इज प्रोवाइडिंग सर्विस of investment banking to CA Limited. Later on, he was also offered an appointment as an auditor of the company for the current financial advice. मतलब ये पूछ रहे हैं कि पोशिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सीए लिमिटेड को, बाद में उसको ऑडिटर एज अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर भी ऑफर हुआ, अभी एडवाइस करना है अपने को, तो अपने बोलेंगे भाई सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 of Companies Act to the disqualifies person for appointment as an auditor of a company who is directly or indirectly renders any service referred to section 144 of company or its holding company, subsidiary company. Section 140 prescribes certain services not rendered by auditor, which includes investment banking. Therefore, CA portion is advised not to accept assignment of auditing as the investment banking service is specifically notified in the list of service not to be rendered by him as per Section 141 subsection 3 clause 1. Read with rule section 144 of the Companies Act 2013. ठीक है, तो ये अपना हुआ सेक्शन 141 सबसेक्शन 3. ओके, तो अभी सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वेयर अ पर्सन appointed as an auditor of company incurs any disqualification mentioned in subsection 3 after his appointment. ठीक है, अगर कोई पर्सन जो एज अ ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंट हो गया है, वो अपॉइंटमेंट के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन विच आर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 इंकर्ड करता है, he shall vacate his office as an auditor. ठीक है, and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of
ऑडिटर, मतलब वो वैकेंसी को मान लिया जाएगा कि कैजुअल वैकेंसी है इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। तो सबसेक्शन 4 ये कहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल नीचे दिया है हमको कि मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड in the annual general meeting of company held in September 2016, which assignment he accepted. Subsequently, in January 2017, he joined Mr. B, another chartered accountant, who is manager finance of Laxman Limited, as a partner. Provisions क्या applicable होंगे ये facts में? Section 141, Section 3, Clause C of Companies Act 2013 prescribes that any person who is a partner or in employment of an officer or an employee of company will be disqualified to be act as an auditor of the company. Subsection 4 of Section 141 provides that an auditor who became subject after his appointment to any of the disqualifications specified in subsection 3 of section 141, he shall be deemed to have vacated his office as an auditor. ठीक है, कंक्लूजन में क्या होगा इसमें कि भाई ए ने एज ए ऑडिटर ऑफिस वैकेंट कर दी है। इन प्रेजेंट केस मिस्टर ए एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड ज्वाइन as a partner with Mr. B, who is manager finance of Lakshman Limited. The given situation attracts subsection 3 clause C of section 141, and therefore he shall be deemed to have been vacated office of auditor of Lakshman Limited in accordance with the provisions of subsection 4 of section 141. ठीक है, तो ये था अपना section 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। थैंक यू।